Good morning, students. Today we are going to start chapter 10 Chemical Reactions and Equations. So, in this chapter, we will learn about the chemical reactions and how we are writing the equation, how we are balancing the equations. Okay. So, first, let's see which type of reaction or which type of changes are known as chemical changes or chemical reaction. In our daily life around us, we see numerous of changes like the water change into ice. When we boil the water, then water change into gases from that is the steam. Okay, so here see students, water, when we freeze water, its state only changes. Water converts into solid matter, that is what? Ice. When we boil the water, then it change from liquid to gaseous form, but nothing happens here. No new product formation is there, only the state is going to change. So that is called what? Physical change. Physical change means what? No new product formation is there, only the state changes. That is called what? Physical change. Okay, but what how we can identify where is the chemical reaction or chemical changes occur? See, for example, curd. When we add small amount of curd into milk, then after 2-3 hours, we see the whole milk changes into curd. And we know that in milk, bacteria is present, and that is name is what? Lactobacillus. And we add curd, then these bacteria are growing and they convert the whole milk into curd. That means what? Some biochemical changes are there. So it is known as what? Chemical change. Okay. So because how we can say it is a chemical change? See students, the property of milk and the property of curd both are different. Okay. So, and we cannot recreate milk from curd. So milk is what? The reactant or substitute, and the curd is what? Product or new formation. So it is what? Chemical change. Then burning of wood. When we burn wood, then wood react with oxygen and it give us light and heat energy. Then some smoke also, and after burning it converts into coal. So the wood and coal, both the properties are different. Okay. Coal is what? Non-living thing. Wood is what? Living thing. When we burn wood, it converts into what? Ash or coal, and it gives us heat and light energy. So it is what? Chemical change. Then melting of wax is also what? Chemical change. Burning of candle is also what? Chemical change. Then making paneer with the milk, that also what? Chemical change. Because in every reaction there is some kind of energy is released. Then after the reaction we got a new thing that is different from the original one. That is known as what? Chemical reaction. So here, see here, the different examples are given. Burning of coal. Okay, food is cooked, that is when we cook the food, like making of cake. We use batter, and it convert into what? After cooking it, we got what? Cake. Both the properties what? Different. Okay, so due to some reaction it happens. Rusting of iron nails in presence of moisture, in presence of moisture and air, the iron get rusted. It is also what? A chemical reaction, because the iron react with the water and oxygen and it get rusting. So it is what? Chemical reaction. Why we say these are chemical reaction? Because when we see, when this activities happens, we got a new product or new thing. That's why it is known as what? Chemical reaction. Then see, one activity is also given there. In this activity, uh, the material is what? Magnesium ribbon. Take one magnesium ribbon, clean it properly, then burn it in presence of oxygen. So when we burn the magnesium ribbon, this is a magnesium ribbon. When we burn magnesium ribbon, then the formula of magnesium is what? Mg. Magnesium react with the oxygen present in the environment, and it start burning with the white color of flame, and it start burning, and when it burns it give us heat and light. And after burning, we got a new product, that is what? A residue, white color ash, that is what called residue.
So when the magnesium ribbon burns, it gives us heat and light, and one product also. That is product is what? The ash, and it is what? Magnesium oxide. It is what? Magnesium oxide. When magnesium react with oxygen, it forms magnesium oxide. So I am writing a formula. See here. Magnesium, the formula of magnesium is what? Mg. So when magnesium react with what? Oxygen, so it forms magnesium oxide. This is what? Magnesium oxide. So see here, the reactants are what? Two reactants are there. First is what? Magnesium, and the second is what? Oxygen. So when magnesium react with oxygen, it forms a new product, that is what? Magnesium oxide. So it is what? Chemical reaction. It is what? Chemical reaction. And this magnesium oxide is basic in nature. It converts red litmus paper into blue. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्या बता रहे हैं, केमिकल जो रिएक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि केमिकल रिएक्शन के बाद आपको एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, वहां पे एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो ये ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप कैसे पता करोगे? ये जब रिबन पूरी जल जाएगी तो यहाँ पे व्हाइट कलर की एक ऐश राख बचेगी, दैट इज व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो ऐश है, ये क्या आपका बेसिक है। इसको जब हम क्या करेंगे, इसमें इसको वाटर में डिसॉल्व करके अगर इसमें हम रेड रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू, क्योंकि बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में, ब्लू कलर में चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ से एक हमको ये पता चला कि आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इट फॉर्म अ प्रोडक्ट, वी गॉट अ प्रोडक्ट। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज व्हाट? The next activity is what? Take two test tube. In the first, prepare a solution of sodium sulfate by dissolving it in a water. Similarly, prepare a solution of barium chloride in the second test tube. In another test tube, take 10 ml of the sodium sulfate solution and slowly add barium chloride solution to it. Did you get any precipitate? Note the color of the precipitate. Okay. Now here, what do you mean by precipitate? ये जो precipitate लिखा है, इसका meaning क्या होता है? Precipitate मतलब वो होता है a product or substance which doesn't dissolve in water. A substance which does not dissolve in water, that is called what? Precipitate. Okay, मतलब आपका जो precipitate है वो water में dissolve नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, अगर आप मिल्क है, मिल्क में अगर आपने लेमन जूस को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? आपका पनीर बन जाएगा, है ना। मिल्क में अगर आप लेमन जूस को ऐड करोगे तो उसमें क्या होगा? पनीर बनेगा, उसका वाटर अलग हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो पनीर बना है उसको क्या आप वाटर में फिर से डिसॉल्व कर सकते हो? घुलेगा पानी में? नहीं घुलेगा। लेकिन जो पनीर बनी है उससे क्या वापस आपका मिल्क बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो जो सॉलिड आपका जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो एक सॉलिड सब्सटेंस बच रहा है आपके पास और वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेंट। उसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन होता है तो प्रेसिपिटेंट भी बचता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट? रिलीज ऑफ गैस, है ना, लिबरेशन ऑफ गैस। व्हेन द केमिकल रिएक्शन हैपेंस इट रिलीजेस व्हाट? गैस। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो मोस्टली क्या होती है? गैस रिलीज होती है। थ्री टाइप ऑफ गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तीन तरह की गैसेस निकलती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। हाउ वी आइडेंटिफाई विच इज द गैस रिलीज? इट इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे पता करोगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन से जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? बहुत सिंपल है, देखो इस एक्टिविटी में क्या क्या है, टेस्ट ट्यूब लिया है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है। ठीक है, क्या लिया इसमें? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब टेस्ट ट्यूब में जैसे ही जिंक ग्रेनुअल्स को डालेंगे, मतलब पीसेस ऑफ जिंक को डालेंगे, जिंक एक मेटल है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा और यहाँ से गैस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या निकलना शुरू हो जाएगी? गैस। अगर आप इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आते हैं तो आपको पॉप साउंड सुनाई देगा। ठीक है, अगर पॉप साउंड सुनाई दे रहा है तो मतलब यहाँ से जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक, और अगर ये मैच स्टिक और जलना स्टार्ट कर, मतलब और जलना तेज कर देती है तो ऑक्सीजन गैस है।
और अगर ये मैच स्टिक बुझ जाती है तो कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नॉर्मली जब मेटल्स जो होते हैं वो जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज ये पता चली कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस रिलीज होती है। ठीक है, सो नाउ अब हम देखो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है कि क्या होता है कि अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब अगर सॉलिड से लिक्विड है ना, मतलब सॉरी लिक्विड से अगर सॉलिड में स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन थी उसको हमने बर्न कर दिया तो उसका स्टेट चेंज हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया? ऐश में कन्वर्ट हो गया। कलर चेंज होता है कई बार, क्या केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे कि कॉपर है, कॉपर को में अगर आप एसिड डाल दोगे तो उसमें से क्या होती है आपका गैस रिलीज होती है ब्राउन कलर की। फिर कॉपर है, कॉपर को अगर आप एयर में खुला छोड़ दोगे, जैसे कि तांबे का बर्तन आपके घर पे है, अगर उसको हम हवा में ऐसे ही खुला छोड़ दें तो कुछ दिन बाद हम देखेंगे उसमें ब्लैक ब्लैक कलर की एक लेयर बन जाती है, मतलब वो पूरा काला हो जाता है। तो वो काला क्यों होता है? क्योंकि कॉपर जो होता है ना वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्शन करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो उसका कलर वहां से क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, गैस निकलती है और टेम्परेचर भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो आइदर वो एनर्जी को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा या तो फिर वो हीट एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होने के लिए हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि क्रैकर्स, अगर आप बम फोड़ते हो, पटाखे फोड़ते हो तो एक बहुत इंस्टेंटली क्या होती है? बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है, लाइट निकलती है। ठीक है, तो वो क्या है? एक्सोथेर्मिक रिएक्शन है क्योंकि उसमें आपकी हीट एनर्जी निकल रही है। कुछ केमिकल रिएक्शंस को हैपेंस होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हीट को लेते हैं। ठीक है, तो by seeing all this, we can say which is the physical change and which is the chemical change. ठीक है, now chemical equation देखो, ये जो आपका एक्टिविटी लिखा हुआ है, हम हर एक्टिविटी मतलब केमिकल जो आपका प्रोसेस हो रहा है उसको हम अगर इस तरह से इतना वर्डिंग्स में अगर लिखेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट है किसके लिए? याद रखने के लिए। सो बेटर है कि हम क्या करें, इस पूरे वर्डिंग्स जो हमने ए टू जेड वर्डिंग और स्टेटमेंट में लिखा है, वी कैन राइट द होल इन अ फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। आप उसके एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे हम मैथ्स में क्या करते हैं? फॉर्मूलाज लिखते हैं, तो वैसे आप एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो लॉन्ग स्टेटमेंट या पैराग्राफ को याद रखने से अच्छा है कि आप एक केमिकल इक्वेशंस को याद रखो। जैसे कि यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। सो दिस इज व्हाट? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम क्या-क्या शो करते हैं कि रिएक्टेंट कितने थे, ठीक है? हम यहाँ पे रिएक्टेंट को शो करते हैं। प्लस साइन इसलिए ऐड होता है कि सारे रिएक्टेंट एक साथ क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं। एरो साइन शो करता है प्रोसेस को। फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट को, मतलब आफ्टर रिएक्शन व्हाट हैपेंस, व्हाट द न्यू वी आर गेटिंग, दैट इज व्हाट? प्रोडक्ट। जैसे कि मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम ने किससे रिएक्शन किया था? ऑक्सीजन से। सो हियर रिएक्टेंट्स आर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। After the chemical reaction, we are getting a product that is what? Magnesium oxide. So in this way, we can memorize or we can understand the what? Chemical reaction. So writing a chemical equation. Now, जैसे हम मैथ्स के फॉर्मूला लिखते हैं तो देखो हम लोग कभी भी कोई इक्वेशन बनाते हैं, मैथ्स में जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड एंड क्या लेते हैं? राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज ऑलवेज वी कैन से द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई भी इक्वेशन आप लिख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होना चाहिए? राइट हैंड साइड के। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा तो वो इक्वेशन आपका नहीं बनता है ना। बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी है। जब आप केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो ये दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट? राइट हैंड साइड। एंड लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल विद द राइट हैंड साइड। मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपने जितने रिएक्टेंट्स यूज किए हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स, और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट बना है वहां पे नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी हियर, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना है? यहाँ पे मैग्नीशियम है यहाँ पे 1। कितने आपने मैग्नीशियम यहाँ पे कितने लिए? कितने एटम ऑफ मैग्नीशियम है? 1। और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है? 1। तो मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, दिस साइड ऑल्सो मैग्नीशियम इज 1 एंड दिस साइड ऑल्सो मैग्नीशियम इज 1। बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितना है? 1। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। दैट मीन्स व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है।
ठीक है, ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे आप जो रिएक्टेंट्स यूज करते हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स, है ना, और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ओके, दोनों बैलेंस्ड है। बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1, सो इट इज व्हाट, अनबैलेंस्ड। सो वी हैव टू मेक देम इक्वल और वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। कैसे इसको इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1 है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑक्सीजन विथ 2। यहाँ पे ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ऑक्सीजन को जब हम 2 करेंगे तो मैग्नीशियम 1 है, इसको अगर हम ऐसे लिखें MgO2, तो ये पॉसिबल MgO2, तो ये ऐसा नहीं लिखाएगा, है ना, ऐसे नहीं लिखाएगा, तो इसको हमको कैसे लिखना पड़ेगा, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हमें सही करना पड़ेगा और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे 2 को यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, देखो इसको लिख के बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये Mg है, ये लेफ्ट हैंड साइड में Mg कितना है, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है आपके पास, 2 है। ठीक, अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड में। यहाँ पे आपका जो Mg है वो आपको कितना दिया हुआ है, 1। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कारण ये इक्वेशन क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड हो रहा है। तो यहाँ पे हमको ऑक्सीजन को 2 करना है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, मतलब ऑक्सीजन को 2 करेंगे। ठीक, अब हमको जब लिखेंगे तो यहाँ पे MgO2 है, तो अब इक्वेशन को जब लिखना होगा तो यहाँ पे कैसे लिखाएगा आपका, यहाँ पे इक्वेशन लिखाएगा Mg, ठीक है, प्लस O2, और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2 Mg ओ। देखो ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 करना था, तो ये 2 हम यहाँ पे नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिख सकते आप 2 को, आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, सामने। रूल यही है कि आप यहाँ पे नहीं लिखोगे उसके, आप उसको यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखोगे, आपको इसको इन फ्रंट में लिखना पड़ता है। जितने भी आप बैलेंसिंग करोगे ना, वो सब आप कहाँ पे लिखोगे, इन फ्रंट में, यहाँ नहीं लिखना है आपको, एज अ सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखना है। ठीक है, तो मैंने ऑक्सीजन को 2 करना था, तो मैंने इसके आगे फ्रंट में क्या लगा दिया, 2, है ना। क्या ये अब इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया, हम्म, अभी भी नहीं हुआ है, क्यों, देखो यहाँ पे Mg कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ पे जो Mg, ये जो Mg है ये 2 जो है दोनों के लिए है, मैग्नीशियम के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है। तो मैग्नीशियम भी यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या आ गया है, 2 आ गया है ना। तो मैग्नीशियम को भी यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसके पहले भी क्या लगा देते हैं, 2। फ्रंट में लगाओगे, आपको जो भी बैलेंसिंग नंबर लगाना है वो कहाँ पे लगाओगे, आप फ्रंट में लगाओगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, मतलब अब ये क्या हो चुका है, बैलेंस्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करके लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बैलेंस, देखो एक और एग्जांपल, देखो यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या लिया, यहाँ पे H2 प्लस O2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, आफ्टर रिएक्शन क्या बन रही है, H2O। अब बैलेंसिंग देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे H2O में देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 1, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन ठीक है, 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 2 है। ठीक है, दोनों बैलेंस्ड है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ड्यू टू ऑक्सीजन ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, है ना। ये तो रहने दो आपका H2 है, H2 का H2 ही रहने दो, H2 तो बैलेंस है दोनों तरफ, तो H2 का H2 ही रहने देते हैं, प्लस ये हो गया आपका O2। ठीक है, और आफ्टर प्रोसेस ये आपका हो गया है H2। अब मुझे ऑक्सीजन को क्या करना है, 2 करना है, तो ऑक्सीजन को 2 अगर करना है तो मैंने बताया आपको कहाँ लिखेंगे हम लोग, फ्रंट में लिखेंगे 2। तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, इसका 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, ये नंबर ऑफ एटम और सामने का नंबर, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 से कितना हो गया, 4। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया है, 4। अब हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, ये 2 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा, ये जो 2 है ये इस ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा, तो O2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया है, 4। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, फिर अनबैलेंस्ड हो गया। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसको 4 करना है, तो सामने क्या लिख देंगे, 2। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया है, 4, ऑक्सीजन 2,
यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन क्या है 2, मतलब अभी इक्वेशन क्या हो गया है, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। सो दिस वे वी विल इक्वलाइज और बैलेंस द इक्वेशन, है ना। आपको बस ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में कितना है, फिर कितने आइटम्स आपके कम हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको दोनों तरफ क्या करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ तक। देन देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लो, है ना। यहाँ पे कहते हैं N2H2 और यहाँ पे क्या बढ़ रहा है NH3। यहाँ पे देखो आपका जो नाइट्रोजन है वो कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 3। पूरे ही अनबैलेंस्ड है, ना तो नाइट्रोजन ही इक्वल है ना तो हाइड्रोजन ही इक्वल है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब इसको मुझे 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन को कितना करना पड़ेगा 2, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सामने लिख देते हैं 2 इसका। तो नाइट्रोजन कितना हो गया 2, बट हाइड्रोजन देखो कितना हो गया अभी 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, सामने 2 लिखा तो 2 2 तो हो गया है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जा रहा है 6 हो रहा है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको भी हाइड्रोजन को 6 करना पड़ेगा, तो 6 करना है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे 3 2 जा 6, है ना। तो यहाँ पे सामने में क्या लिख देंगे 3, सामने में क्या लिखा आएगा 3। अब देखो नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पे कितना होगा नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, यहाँ पे भी क्या हो गया 3 2 जा 6, मतलब अब ये क्या हो गया है बैलेंस्ड, ठीक है। सो दिस वे वी विल डू, ओके, वी विल बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो अब इसके बाद ये आपके जो क्वेश्चंस दिए हैं ये आप एज अ होमवर्क आप करेंगे। देन टुमारो वी विल लर्न टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।